مہمان خصوصی کے لیے ہے۔ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں اس پر مہمان خصوصی بیٹھیں گے، ہمارے یہاں کے چیف گیسٹ بیٹھیں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ چیف گیسٹ کی جو کرسیاں لگی ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھنے والا چیف گیسٹ بننے والا مہمان خصوصی بننے والا ہماری محفل کا وہ مہمان خصوصی کون ہوتا ہے؟ جو سرمایہ دار ہے وہی ان کرسیوں پہ ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے وہ کرسیوں پہ ہوتا ہے، علماء کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جو دولت رکھتا ہے، شیخ کے پاس بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، پیر و مرشد کے پاس بھی وہی قریب ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، ہمارے اسلامی اسٹیٹوں پہ بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر سرمایہ دار کیوں ہوں گے؟ مہمان خصوصی سرمایہ دار کیوں ہوں گے؟ جبکہ حالت یہ ہے انہیں مہمان خصوصی میں کرسیوں پہ بیٹھنے والا جو آج مہمان خصوصی بن کے بیٹھا ہے، جو آج چیف گیسٹ بن کے بیٹھا ہے، جو ہماری محفل کا چیف گیسٹ بن کے بیٹھا ہے، جو آج وی آئی پی بن کے بیٹھا ہے، کل اسے شراب خانے میں دیکھا گیا تھا، کل اسے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، کل اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا گیا تھا، کل اسے دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا گیا تھا، کل اسے فریب دیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ایک فریبی ہمارا چیف گیسٹ ہو رہا ہے، ایک بے نمازی ہمارا چیف گیسٹ ہو رہا ہے، ایک بدکار ہمارا مہمان خصوصی ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گناہگاروں کو چیف گیسٹ نہ بنائے۔ اگر تم چاہتے ہو ہماری محفل آباد ہو، چاہتے ہو مسجد آباد ہو، چاہتے ہو کہ مسجد آباد ہو، چاہتے ہو کہ معاشرہ نمازیوں کا ہو، تو یہ فیصلہ کر لو ہماری محفل کا مہمان خصوصی دولت والا نہیں ہوگا، جس کی پیشانی میں سجدے کا نور ہوگا وہ ہمارا مہمان خصوصی ہوگا، وہی ہمارا چیف گیسٹ ہوگا۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھول بھیجو نہ پنکھیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آگے تشریف لے آئیں۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور موقع غنیمت جانیے، اگر جانے کی طبیعت ہو تو اسی کھڑے ہونے کے بہانے آپ دھیرے سے نکل بھی سکتے ہیں، زبردستی روک بھی نہیں پاؤں گا۔ میری تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، میرے بعد پھر شاعر اسلام حضرت ندیم رضا فیضی تشریف لائیں گے، آپ بھرپور انداز سے نعت خوانی سماعت کریں گے۔ جس کے جی میں آئے تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں۔ آپ ذرا سا آگے آئیے نا، جو لوگ چلے گئے ہیں اگر ان کو آنا ہوگا تو وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ میری بات اگر سمجھ میں آ رہی تو ذرا سا اٹھ کے آ جائیے، آپ اچھا لگے گا۔ یہ جلسہ گاہ کو جلسہ گاہ بنا کے رکھیے، جلسے والے بڑی محنتوں کے بعد ایک جلسہ سجاتا ہے، ایسا لگے کہ جیسے جلسہ گاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ آپ بالکل محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے بیٹھ جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں کچھ ایسی باتیں آپ کے لیے کر جاؤں جو آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب میں گفتگو کا آغاز کروں گا تو پھر مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری بات کتنے لوگ سن رہے ہیں۔ میرے سامنے اگر 10 لوگ بھی بیٹھے رہیں گے تو میں وہی باتیں کروں گا جو 50,000 کے مجمع میں باتیں کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہی 10 لوگ کل جب صبح ہوگی تو آپ سے وہ لوگ پوچھیں گے جو جا چکے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ مولوی جنید نے کیا کیا کہا، آپ نے ضرور سنائیں گے کہ یہ بتایا، یہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری بات ان تک نہیں پہنچے گی، میری بات پہنچے گی، چند ہی لوگ رہیں گے لیکن محبت سے آپ سنیں گے۔ آپ کا مہمان خطیب آج آپ سے جو باتیں کرنا چاہے گا اس میں
बात अच्छी ये होगी कि आपसे जो भी बातें मैं करूंगा आपका दिल बहलाने के लिए नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं, बात बात पर मैं आपको जन्नत भेजने की बात नहीं करूंगा, बल्कि जो बीमारी हमारे माशरे की है उन बीमारियों का खात्मा कैसे होगा, जो खराबियां हमारे समाज के अंदर हैं वो खराबियां कैसे खत्म होगी, आप जन्नत में जाएंगे तो उसके लिए रास्ता कैसे निकलेगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबों का पालनहार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आप गुनहगार हो गए हो, आप खताकार हो गए हो, आपने अगर जिंदगी में कभी शराब पी ली है, अगर आपने जिंदगी में कभी जुआ खेला है, आपने अगर किसी को गाली दी है, अगर आपने अपने माँ बाप को सताया है, अगर माँ बाप की आपने नाफरमानी कर दी है, आपने अगर ज़िना कर लिया है, आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, तो अल्लाह फरमाता है तुम परेशान हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो कि मैंने ज़िना किया है बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मैंने गुनाह कर लिया है मग़फ़िरत होगी कि नहीं, वालिदैन की नाफरमानी मैंने की है हमारा ठिकाना कहाँ होगा। ऐ मेरे बंदों मत घबराओ, ऐ मेरे बंदों घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हे भागे हुए इंसान पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा करीब है, तेरा रब बड़ा करीब है, तू घबरा मत, आजा पलट के, तेरा रब तुझे माफ कर देगा। तू तौबा करके तो देख, किसी बंदे खुदा के करीब आ, उन्हें सिफारिशी बनाकर खुदा की बारगाह में अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कर ले, तेरा रब तुझे माफ फरमा देगा। तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है। बोलो थोड़ी देर मेरी बातों को सुनोगे आप? सुभान अल्लाह। अब आपसे फिर एक गुजारिश करूंगा, कुछ लोग अभी भी बिखरे हुए, मैं चाहता हूँ सिमट जाइए, आप बीच में भी कुछ जगह है, अगर आप सिमट जाएंगे। भाई सुनिए, आपको हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का वास्ता, आपको हुजूर मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं कि हमारे शहर में आने वाला मेहमान आया है, और मेहमान की बात ये लोग नहीं रख रहे हैं, आप अपना अंजाम खुद सोचोगे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने मज़ार से देख रहे हैं कि हमारे शहर के लोग, हमारे माशरे के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग हमारे नाम का वास्ता दिया गया, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपने नाथखानी समाअत अभी की है, बड़ी दयानतदारी के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं इस्लाम का एक मुबल्लिग हूँ, आप मुझे मुबल्लिग की हैसियत से देखिए, और मुबल्लिग का काम होता है तबलीग करना। हर दौर में मुबल्लिग इस्लाम ने तबलीग किया है, और इस्लाम की तबलीग जब जब हुई है, रास्ता भटकने वाले रास्ता देख लेते हैं, जो जन्नत की राह भूल जाता है उसे जन्नत का रास्ता दिखाया जाता है। आप इस गलत फहमी में मत रहना, आपको बात बात पर खुश किया जाता है, आपको बात बात पर जन्नत जाने की बात कही जाती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक बेनमाजी अगर ये सोच ले कि बड़े आसानी के साथ हम चले जाएंगे जन्नत, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक नाफरमान सोच ले कि हम बड़े आसानी से जन्नत चले जाएंगे, कैसा हो सकता है? क्या एक रात जलसे में शरीक हो जाने से कोई जन्नती हो जाएगा? या सिर्फ नाते पाक समाअत कर लेने से कोई जन्नती हो जाएगा? या सिर्फ तकरीर समाअत कर लेने से कोई जन्नती हो जाएगा? या कोई किसी पीर के हाथ पर हाथ दे देने से कोई जन्नती हो जाएगा? अगर बात ऐसी होती तो नमाज फर्ज नहीं की जाती, रोजा फर्ज नहीं किया जाता, हज आप पर फर्ज नहीं किया जाता, ज़कात फर्ज नहीं किए जाते। मुहतरम दोस्तों, पता क्या चला? जन्नत जाने के लिए गर्दन कटानी पड़ती है तब जन्नत मिलती है, जन्नत जाने के लिए शब्बेदारी करनी पड़ती है तब जन्नत जाना पड़ता है, जन्नत जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके सरकार के रोजे पर हाजिरी देनी पड़ती है तब जन्नत मिलती है। बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, गौर करना होगा, अपने अमल का मुहासबा करना होगा। आओ मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी से हमें पैगाम क्या मिलता है? जश्न ईद मिलादुन नबी से हमें सबक क्या मिलता है? उलमाए अहले सुन्नत मेंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं, कुछ लोग जरूरत से तशरीफ ले गए हैं। आप मुझे देखिए, अगर आपका इशारा हो जाएगा मैं आपका चेहरा पढ़ूंगा, आपकी पेशानी पढ़ूंगा, मैं देख लूंगा कि आप अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। लेकिन देखो, आप आशिक कहलाते हो,
आप आशिक कहलाते हो, आप मुसलमान कहलाते हो। बोलो आशिक कहलाते हो कि नहीं? कितने लोग हैं जो मुसलमान हैं? जरा हाथ उठाएं तो ईमानदारी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब के सब हजरत मुसलमान हैं। अब एक बार और हाथ उठाना है। कितने लोगों ने इशा की नमाज अदा की है? वो लोग सिर्फ हाथ उठाएंगे। जिन लोगों ने सिर्फ इशा की नमाज अदा की है वो लोग हाथ उठाएं। अब देख लीजिए कि कितने लोग मुसलमान हैं, कितने लोग आशिक हैं, कितने लोग नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी से मोहब्बत भी हो और बेनमाजी, नबी से मोहब्बत भी हो और बेअमल, नबी से मोहब्बत भी हो और रास्ता आपका बदला हुआ हो। ऐसी मोहब्बत है नबी से। नबी तो कदम कदम पे आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी जिंदगी से नबी को इतना प्यार है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में किसी फर्द को जब कोई खुशी होती है तो मुझे भी खुशी होती है, और जब कभी गम होता है तो मुझे भी गम होता है, मुझे भी गम होता है। आपकी खुशी नबी अपनी खुशी तसव्वुर करे, आपका गम नबी अपना गम तसव्वुर करे, मगर आप हैं कि नबी की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। आज ये जरा सा जी लगा के प्यारे मुसलमानों, मैं थोड़ी देर आपके दरमियान हायल रहूंगा। मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरा वक्त कितना सा है और कितनी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन अगर सच्चाई के साथ आपने मेरी गुफ्तगू को समाप्त किया, अगर दयानतदारी के साथ आपने गुफ्तगू को समाप्त किया, तो मैं आपसे कहूंगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुजाहिद मिल्लत का आपको सदका जरूर मिलेगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत निगाहे करम जरूर फरमाएंगे अगर दयानतदारी के साथ आपने समाप्त किया तो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप 5 मिनट मेरी गुफ्तगू को सुनिए। अगर बातों में सच्चाई ना हो, अगर बातों में दयानतदारी ना हो, तो आपको मेरी तरफ से इजाजत होगी, आप जा सकते हैं। और अगर सच्चाई नजर आए तो आपको थोड़ी देर के लिए गुस्सा जरूर लगेगा, आपको थोड़ी देर के लिए मेरी बातों में कड़वाहट महसूस करेंगे आप, लेकिन सच्चाई में कड़वाहट होती है, सच्ची बातों कड़वी मालूम होती है। सच्ची बातें मगर सुननी चाहिए, बातें कड़वी हो मगर इसलिए सुनो कि इसमें सच्चाई है। मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जश्न ईद मिलादुन नबी का पैगाम सुना रहा हूँ। आज आपसे कहा जाता है कि आप सच बोला करो, आज आपसे कहा जाता है आप नमाज पढ़ा करो, आज आपसे कहा जाता है अच्छे अमल किया करो। आपका बेटा शराबी हो गया, आप कूटते हो, आप कोसते हो, आप अफसोस करते हो मेरा बेटा शराबी क्यों हो गया, मेरा बेटा जुआरी क्यों हो गया, मेरा बेटा बदतमीज क्यों हो गया, मेरा बेटा नाफरमान क्यों हो गया, मेरा बेटा ज़िनाकार क्यों हो गया, मेरा बेटा ज़िनाकार क्यों हो गया। मैंने जब पूछा कि बताओ कि मुआशरा कैसा है जिसमें शराबी रहा करते हैं, जिसमें जुआरी रहा करते हैं, जिसमें बेअदब रहा करते हैं, जिसमें बेनमाजी रहा करते हैं, तो आपका जवाब होता है क्या करूं मौलाना साहब, हमारा मुआशरा अच्छा नहीं है, हमारा समाज अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, मुआशरा आपसे बनता है, आप मुआशरे से नहीं बनते हो। आप मुआशरे बनाओगे, आप किरदार अच्छा अपनाओगे तो अच्छा मुआशरा होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो अच्छा समाज होगा, आपकी आपका रहन सहन अच्छा होगा तो एक अच्छा समाज बनेगा। अगर आप मुआशरे को आप ना कोसो, मुआशरे को बुरा भला न कहो। मेरे मुस्तफा ने जो तालीम दी है वो तालीम याद रखो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में कदम रखा था उतना बुरा मुआशरा हमारा नहीं है, उतना बुरा समाज हमारा नहीं है, उतनी बुरी सोसाइटी हमारी नहीं है। वो जो सोसाइटी थे वो बहुत बुरी सोसाइटी थे, वो जो मुआशरा था वो बड़ा खराब मुआशरा था। इस मुआशरे में मेरे आका ने कदम रखा था, वो मुआशरा किन लोगों का था, वो झूठों का मुआशरा था, बुत परस्तों का मुआशरा था, बुत परस्तों का मुआशरा था, ज़िनाकारों का मुआशरा था, शराबियों का मुआशरा था, वो झूठों का मुआशरा था। मगर मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं तो झूठों के माहौल में रहे मगर कभी झूठ नहीं बोले, शराबियों के माहौल में रहे कभी शराब को बुरा लगाया, आप दयानतदार रह गए, आप पत्ती लगी के माहौल में रहे मगर पत्ती लगी से पाक, शराबी के माहौल में रहे मगर शराब से पाक, झूठों के माहौल में रहे मगर झूठ से पाक, पत्ती लगी के माहौल में रहे मगर पत्ती लगी से पाक, ज़िनाकारों के माहौल में रहे मगर ज़िना से पाक। मुस्तफा जाने रहमत ने पैगाम दे दिया, मुआशरा हमसे बनता है, हम मुआशरे से नहीं बनते। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर नारे मुस्तफा
करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी बहुत नारे लगाए हैं मैं उनसे कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हैं जिन लोगों ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है। मैं आपसे सच्चाई के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या आज का मुआशरा वही है जो मुआशरा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर का था? क्या आज का समाज वही है जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर का समाज था? क्या आज वही सोसाइटी है जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर की सोसाइटी थी? क्या उसी ख्याल के लोग अभी हैं जिस ख्याल के लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में थे? आपका जवाब होगा नहीं। उस दौर में जो लोग थे, जिन लोगों ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है, जिन लोगों ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखा है, उस वक्त तो 80% लोग नमाजी हुआ करते थे और आज 80% लोग बेनमाजी हुआ करते हैं। आज 80% लोग बेनमाजी हुआ करते हैं। एक अच्छा माशरा बनाइए, एक अच्छा समाज बनाइए, एक अच्छी सोसाइटी बनाइए। कैसे अच्छी सोसाइटी बनेगी? आओ मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आयत करीमा का तर्जुमा आपको नहीं सुनाया, पहले तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बातें करूंगा। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं तो एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दुआ करो कि मैं हक बोल जाऊं। हक बोलना बड़े कलेजे की बात है प्यारे मुसलमानों। हक बोलने में आज के डेट में डर लगता है, आज के दौर में हक बोलने में डर लगता है, लेकिन आपका खालिद हिम्मत कर रहा है कि हक बोलो। आप गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। हम सबों का पालनहार इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, अगर अल्लाह को राजी करना हो, अगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब आप कहो कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। अल्लाह तो फरमाता है, महबूब अगर कोई आपके नक्शे कदम पे चलेगा, अगर कोई आपके तरीके पे चलेगा, अगर कोई आपकी पैरवी करेगा, अगर कोई आपकी इत्तिबा करेगा, तो अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। अब आप यहाँ से सुनिए, अब इत्तिबा क्या है? इत्तिबा दो किस्म की है। एक इत्तिबा बात की होती है, एक इत्तिबा जात की होती है। एक अल्लाह के महबूब की बात की इत्तिबा और एक अल्लाह के महबूब की जात की इत्तिबा। बात की इत्तिबा ये है, गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी। बात की इत्तिबा ये है कि नमाज पढ़ना ये बात की इत्तिबा है। आका ने नमाज पढ़ने को कहा, हम पढ़ते हैं तो ये बात की इत्तिबा है। आका ने रोजा रखने को कहा, हम अगर रखते हैं रोजा तो ये बात की इत्तिबा है। आका ने ज़कात देने को कहा, अगर हम ज़कात देते हैं तो ये बात की इत्तिबा है। अगर हम दुरूद पढ़ते हैं तो ये बात की इत्तिबा है। जात की इत्तिबा क्या है उसे समझना होगा। जात की इत्तिबा कैसे होगी? मोमिन वो होता है जो जात की भी इत्तिबा करे और बात की भी इत्तिबा करे। सिर्फ बात की इत्तिबा करने वाला मोमिन नहीं होता है। मोमिन वो होता है जो बात की भी इत्तिबा करे और जात की भी इत्तिबा करे। अब मैं बताता हूँ कि जात की इत्तिबा कैसे होती है। नमाज पढ़ना बात की इत्तिबा, रोजा रखना बात की इत्तिबा, हज करना बात की इत्तिबा, ज़कात देना बात की इत्तिबा। और जात की इत्तिबा ये है कि अल्लाह के हबीब ने कहा ना हो, मगर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में कर लो, ये जात की इत्तिबा है। नबी की मोहब्बत में कर लो, ये जात की इत्तिबा है। आका की मोहब्बत में कर लो, ये जात की इत्तिबा है। और वो किन लोगों ने किया है अब आपको बताता हूँ, आपको भी करना होगा। बात की भी इत्तिबा कीजिए, जात की भी इत्तिबा कीजिए। आप 5 मिनट सुनिएगा ना, थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा कि ये बताना आखिर क्या चाहता है। कोई सिरा मालूम नहीं होता, कोई नतीजा मालूम नहीं होता, ना आगाज समझ में आ रहा है, ना इसका अंजाम समझ में आ रहा है, लेकिन अभी अभी अंजाम भी समझ में आएगा, आगाज भी आपको समझ में आएगा। जात की इत्तिबा कैसे होती है? मेरे आका ने एक रोज सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, हिजरत का हुक्म होने वाला है। मक्का के लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मक्का के लोगों ने पत्थर मारा है, मक्का के लोगों ने राहों में कांटे बिछाए हैं, मक्का के लोगों ने मेरी पीठ पे ओझरी डाली है, मक्का के लोगों ने मुझे गालियां भी दी है, मक्का के लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है, मक्का के लोगों ने सहाबा को कत्ल भी किया है, मक्का के लोगों ने सहाबा को परेशान भी किया है। अब मेरे खुदा को ये गवारा नहीं है, मेरे परवरदिगार को ये गवारा नहीं है कि अब और महबूब को सताया जाए, अब और मेरे महबूब को तकलीफ दी जाए, अब और मेरे महबूब की राहों में कांटे बिछाए जाए। इसलिए मेरे सहाबियों, मेरे अल्लाह का हुक्म आने वाला है। अब हमें मक्का छोड़ना होगा, अब हमें मक्का से चलना होगा, अब हमें हिजरत करना होगा। हिजरत किस वक्त करना हो? जब अल्लाह का हुक्म आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हिजरत का हुक्म होने वाला है। अल्लाह की
जानिब से मक्का छोड़ने की बात की जाएगी। बात आई, खत्म हो गई, सारे के सारे लोग चले गए। फिर दूसरी महफिल भी सजी, खत्म हो गई। तीसरी महफिल सजी, खत्म हो गई। कई रोज गुजर गए। अब कई रोज गुजर जाने के बाद आधी रात के वक्त, रात की तन्हाई में, अंधेरी रात है, मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्राइल बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। हुक्म सुनाया जाता है, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला आपको सलाम पेश फरमाता है और हिजरत का हुक्म फरमा रहा है। आप मक्का छोड़ दीजिए या रसूल अल्लाह, आप मक्का को खैराबाद कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मक्का की गलियों को छोड़ दीजिए या रसूल अल्लाह, खानाए काबा की दीवार से दूर हो जाइए या रसूल अल्लाह। अब आप मक्का छोड़ दीजिए, अब आप मदीने चलिए, हिजरत फरमाइए। मेरे आका को हिजरत का हुक्म मिला। मेरे आका अंदर से बाहर तशरीफ लाए, अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। गौर से सुनिएगा, जात की इत्तिबा क्या है, बात की इत्तिबा क्या है। मेरे आका कमरे से बाहर आए, हुजरे से बाहर आए, अपने रूम से बाहर आए, दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर अबू बकर खड़े नजर आए। अबू बकर दरवाजे के बाहर, मेरे आका ने चाह फरमाया, ए अबू बकर क्या बात है, इतनी रात में यहाँ खड़े हो, किस काम से आए हो अबू बकर, किस वास्ते आए हो अबू बकर, किस खातिर आए हो अबू बकर, कब से खड़े हो अबू बकर, कब आए हो अबू बकर, यहाँ क्या कर रहे हो अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुन के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चंद दिनों पहले आपने इरशाद फरमाया था अल्लाह की जानिब से हिजरत का हुक्म होने वाला है। मैंने उसी रोज महसूस किया था आका जब हिजरत फरमाएंगे एक साथी की जरूरत होगी, एक हमसफर की जरूरत होगी, एक साथी की जरूरत होगी। या रसूल अल्लाह, ख्याल के गुजरा आपका अगर अकेले जाना हुआ तो अकेले सफर करना होगा, किसी साथी की जरूरत है। दिन भर आपकी खिदमत में रहता था, शाम को जब घर आता था ख्याल आता था कहीं अल्लाह का हुक्म ना आ जाए तो मैं पलट के आ जाता। रात भर आपके दरवाजे पर खड़ा रहता, रात भर आपके दरवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। आका ने फरमाया नहीं था कि अबू बकर मेरे दरवाजे पे रात भर खड़े रहा करो। आका ने ये नहीं कहा था कि मैं हिजरत करूंगा तो तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार करना, कहा नहीं था। मोहब्बत में आके खड़े हुए, इसी को कहते हैं जात की इत्तिबा। जात की इत्तिबा और है, जात की इत्तिबा और है। तवज्जो है आपकी। मैं चाहूँ तो बड़ी तफसील कर सकता हूँ मगर वक्त मेरे पास नहीं है। शुराए किराम को सुनने के लिए आप बेचैन हैं, बेचैन है सुनने के लिए। मैं कहता हूँ हाँ, शुराए किराम को सुनने के लिए बेचैन रहा करो। आप नात की महफिल सजे तो आप शिरकत किया करो, महफिले नात सजे तो आप नाते पाक सुना करो। मगर मैं कहता हूँ महफिले नात से भी तबलीग होती है, नात पढ़ने से भी तबलीग होती है, नात सुनने से भी तबलीग होती है। मगर कैसी नात पढ़ी जाए, कैसी नात सुनी जाए, अगर ये जानना हो कि नात की महफिल से तबलीग कैसे होती है तो इमाम राज़ी से पूछना होगा आपने कैसी नात पढ़ी जो तबलीग हुई है। शेख सादी से पूछना होगा कैसी नात आपने पढ़ी जो तबलीग हुई है। हाफिज शिराजी से पूछना होगा जैसी नात आपने पढ़ी जो तबलीग हुई है। आपको हजरत सादी से पूछना होगा आपने कैसी नात पढ़ी जो दीन की तबलीग हुई है। आला हजरत से पूछना होगा आपने कैसी नात पढ़ी जो तबलीग हुई है। मेरे दोस्तों तो जवाब देंगे नात पढ़ने का और नात सुनने का अंदाज ये हो कि जब नात सुनी जाए तो ख्याल गुंबद खतरा का आ जाए, नात सुनी जाए तो ख्याल मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद। हम तो नात सुनते हैं तो फिल्मी अदाकार याद आते हैं, कैसे तबलीग होगी। हम नात सुनते हैं तो फिल्मी अदाकार की अदाएं याद आती है। खोते हो फिल्मी अदाकारों में, खो जाओ मुस्तफा की अदाओं में तो तबलीग हो जाए। नात का मफहूम यही है, नात का मफहूम यही है। सुनो नात जरूर सुनो, नाते रसूल पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। मगर ऐसी नात सुनो कि सुनो नात और ख्याल गुंबद खतरा का आ जाए। सुनो नात, ख्याल मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात सच्ची कर रहा हूँ कि नहीं? सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं जरा। अब सुनिए गौर से मेरी बातों को सुनिए प्यारे मुसलमानों। मैंने अभी कहा मैं चाहूँ तो थोड़ी सी तफसील कर सकता हूँ जात की इत्तिबा कैसे होती है। अगर इजाजत हो तो एक बात और बता दूं मैं, जात की इत्तिबा
वाकया बहुत पुराना है, वाकया बयान करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप समझें ज़ात की इत्तिबा कैसे होती है। मौला अली मकामे सहबा में असर का वक्त जा रहा है, मेरे आका हजरत अली के दानों पे सर रख के आराम फरमा रहे हैं। मौला अली के दानों पे मेरे आका का सर है, सरे अनवर है, आराम फरमा रहे हैं आका। सूरज गुरूब होने वाला है, सूरज कह रहा है दबे लफ्जों में अली, अली जल्दी से वजू कर लो, असर का वक्त जा रहा है, अली जल्दी से वजू कर लो, सूरज डूबने वाला है, अरे अली जल्दी से खड़े हो जाओ, क़याम की हालत में आ जाओ, जल्दी नियत कर लो, वरना बात की इत्तिबा रह जाएगी। नमाज पढ़ना बात की इत्तिबा है, बात की इत्तिबा ना हो सकेगी, मुस्तफा की इत्तिबा ना हो सकेगी। अरे अली जल्दी से उठ जाओ, नमाज अदा कर लो, असर की नमाज अदा कर लो, बात की इत्तिबा हो जाएगी। मैं डूब जाऊंगा अभी मोहलत दे रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा अभी मोहलत दे रहा हूँ, मैं छुप जाऊंगा अभी मोहलत दे रहा हूँ। अरे अली जल्दी नियत कर लो, अरे अली जल्दी से खड़े हो जाओ, अरे अली जल्दी से असर की नमाज अदा कर लो, वरना असर का वक्त खत्म हो जाएगा। मौला अली का इश्क बोल उठा, अरे बात की इत्तिबा अगर रह जाए तो रह जाने दो, हमें तो आज साथ की इत्तिबा करनी है, हमें तो साथ की इत्तिबा करनी है। और साथ की इत्तिबा में जब असर का वक्त हो गया तो साथ की इत्तिबा में इनाम क्या मिला कि हर रोज सूरज को पूरब की तरफ से निकलता है, मगर अली के लिए पश्चिम से सूरज निकाल दिया गया है, मगरिब से सूरज। ज़ात की इत्तिबा करोगे तो इनाम मिलेगा, बात की भी इत्तिबा हो, मगर आप तो बात की भी इत्तिबा नहीं करते, आप तो बात की भी इत्तिबा नहीं करते। बात की इत्तिबा का मतलब यह है नबी जो कहे उसे मानो, नबी जैसा कहे वैसे करो, नबी जिन बातों से रोके उससे रुको, नबी जिन कामों का हुक्म दे उसे करो, यह है बात की इत्तिबा। अब हमें देखना यह है कि किन किन बातों को हमने माना है, कौन कौन सी बातें हमने मानी है। रात हम ये देख रहे हैं कि न हम नमाज के आदी हो चुके हैं, न हम सच्चाई के आदी हैं, न दयानतदारी के आदी हैं, हमारे अंदर बेअमली है, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर काले गोरे का फर्क है, हमारे अंदर सरमायादार और गरीब का फर्क है। आज न गरीबों को देखा जा रहा है, न मोहब्बत की नजर से गरीबों को सीधे से लगाया जाता है। मेरे महबूब मेरे आका का खास पैगाम ये है कि गरीबों को नजर अंदाज न करो, लाचारों को नजर अंदाज न करो, मजबूरों को नजर अंदाज न करो, मजदूरों को नजर अंदाज न करो, गरीबों को सीने से लगाओ, गरीबों को कलेजे से लगाओगे तो मुस्तफा के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, मुस्तफा के कलेजे को ठंड मिलेगी। मुहतरम दोस्तों, मगर आज के सरमायादारों का हाल क्या है? मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ। प्यारे मुसलमानों, आज मस्जिद भरती क्यों नहीं है? आज इबादत का शौक पैदा क्यों नहीं होता? आज पेशानी में सजदे की तड़प पैदा क्यों नहीं होती? हर शख्स दौलत के लालच में दौड़ता चला जा रहा है, सरमाया जमा करना चाहता है, हर शख्स को नशा चढ़ा हुआ है दौलत का, हर शख्स को नशा चढ़ा हुआ है सरमाए का, हर कोई करोड़पति बनना चाह रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज करोड़पति बनने का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? लाखपति बनने का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? सरमाया जमा करने का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? ये सरमायादारों, अगर इसमें अमीर लोग भी बैठे हैं, अगर दौलतमंद लोग भी बैठे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बुरा ना मानना, एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, दौलत दिया है तो गरीबों में बांटो, दौलत दिया है गरीबों को कलेजे से लगाओ, दौलत दिया है अल्लाह ने तो लाचारों को मुलाचारों की मदद करो। तब देखो तेरे ऊपर कैसे करम की बरसात होती है, कैसे रहमत की बरसात होती है। मैं अर्ज करना ये चाहता था, मेरे मुस्तफा का ऐलान सुनो, इस्लाम का पैगाम सुनो। इस्लाम तो सवाल की तालीम देता है, इस्लाम बराबरी की तालीम देता है, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, मगर होता क्या है? मेरे एक जुमले को याद रखिएगा, मस्जिद भरती क्यों नहीं है? मस्जिद खैर आबाद क्यों है? आपकी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा क्यों नहीं होती? हर लोग दौलत के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसलिए दौलत के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं कि आज हमारी कोई महफिल जब होती है, जब कोई मजलिस सजती है, तो वहाँ कुछ कुर्सी
कुर्सियां ऐसी लगाई जाती हैं जो कहा जाता है इस पर VIP लोग बैठेंगे, इस पर सरमायादार लोग बैठेंगे, इस पर मेहमान खुसूसी बैठेंगे। चीफ गेस्ट जो हमारी महफिल का होगा वो इन कुर्सियों पे बैठेगा। गौर से मेरी बातों को सुनना, हमारी महफिलों का चीफ गेस्ट कोई होता है, कोई हमारे महफिल का चीफ गेस्ट होता है, मेहमान खुसूसी भी होता है, हमारी महफिल का मेहमान खुसूसी होता है। हमारे महफिल के लोग कुछ VIP लोग होते हैं, उनके लिए अलग कुर्सियां बिछाई जाती हैं। ये कुर्सी VIP लोगों के लिए है, ये कुर्सी मेहमान खुसूसी के लोगों के लिए है, मेहमान खुसूसी के लिए है। ये जो कुर्सियां लगी हुई है इस पर मेहमान खुसूसी बैठेंगे, हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट बैठेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ वो चीफ गेस्ट की जो कुर्सियां लगी है उन कुर्सियों पे बैठने वाला चीफ गेस्ट बनने वाला मेहमान खुसूसी बनने वाला हमारी महफिल का वो मेहमान खुसूसी कौन होता है? जो सरमायादार है वही उन कुर्सियों पे होता है, जो दौलतमंद होता है वो कुर्सियों पे होता है। उलमा के करीब भी वही होता है जो दौलत रखता है, शेख के पास भी वही होता है जिसके पास दौलत होती है, पीरो मुर्शिद के पास भी वही करीब होता है जिसके पास दौलत होती है, हमारे इस्लामी स्टेटों पे भी वही होता है जिसके पास दौलत होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर सरमायादार क्यों होंगे? मेहमान खुसूसी सरमायादार क्यों होंगे? जबकि हालत ये है उन्हीं मेहमान खुसूसी में कुर्सियों पे बैठने वाला जो आज मेहमान खुसूसी बन के बैठा है, जो आज चीफ गेस्ट बन के बैठा है, जो हमारी महफिल का चीफ गेस्ट बन के बैठा है, जो आज VIP बन के बैठा है, कल उसे शराब खाने में देखा गया था, कल उसे जुआ खेलते हुए देखा गया था, कल उसे झूठ बोलते हुए देखा गया था, कल उसे धोखा देते हुए देखा गया था, कल उसे फरेब देते हुए देखा गया था। मैं कहता हूँ एक फरेबी हमारा चीफ गेस्ट हो रहा है, एक बेनमाजी हमारा चीफ गेस्ट हो रहा है, एक बदकार हमारा मेहमान खुसूसी हो रहा है। मैं कहता हूँ अपने गुनाहगारों को चीफ गेस्ट न बनाओ। अगर तुम चाहते हो हमारी महफिल आबाद हो, चाहते हो मस्जिद आबाद हो, चाहते हो कि मस्जिद आबाद हो, चाहते हो कि माशरा नमाजियों का हो, तो ये फैसला कर लो हमारी महफिल का मेहमान खुसूसी दौलत वाला नहीं होगा, जिसकी पेशानी में सजदे का नूर होगा वो हमारा मेहमान खुसूसी होगा, वही हमारा चीफ गेस्ट होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा जुनैद अहमद जमाली। जिसके पास तकवे का नूर होगा वो चीफ गेस्ट होगा, वो मेहमान खुसूसी होगा। हम पोस्टर निकालते हैं, महफिल चाहे जो भी हो पोस्टर निकालते हैं, सिर्फ जलसे की बात नहीं कर रहा, चाहे वो जिस चीज का पोस्टर हो, पोस्टर निकालते हैं तो उसमें एक खाना बना हुआ रहता है, एक गोशा रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है मुअद्दिजीन शहर, अस्माए मुअद्दिजीन शहर। ये शहर के जो मुअद्दिज हजरात हैं ये उन लोगों के नाम है। तो किनका नाम रहता है? जो नेताजी हुआ करते हैं, जो नेताजी हुआ करते हैं, जो दौलत वाला होता है, जो सरमाया वाला होता है, जो दौलत वाला होता है। फिर दोस्तों क्यों? इसलिए कि उसके पास दौलत है, इसलिए वो मुअद्दिज हो गया। मैं कहता हूँ इज्जत का मेयार दौलत न बनाओ, इज्जत के मेयार से दौलत को न बनाओ, दौलत को इज्जत का मेयार न ठहराओ। हमारा परवरदिगार फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक इज्जत वाला वो है जो तकवा वाला है, जो सजदा वाला है, जो परहेजगार है, वो इज्जत। ऐ दौलतमंदो, ऐ सरमायादारो, मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, आपसे दुश्मनी नहीं लेनी है, आपको सोचना होगा। देखो जब ऐसी महफिल सजे तो ऐ दौलतमंदो आप भी उलमाए किराम भी सब मिलके एक बात बैठो, और बैठने के बाद देखो हमारे समाज में कौन है जो गरीब तो है मगर उसकी पेशानी में सजदे का नूर नजर आ रहा है, उसके पास तकवे से दामन उसका भरा हुआ है, वो इबादत करने वाला है, वो बंदगी करने वाला है। उस इंसान को अपनी महफिल का चीफ गेस्ट बनाओ जिसके पास तकवा है, जिसके पास सजदे है, जिसके पास अल्लाह की बंदगी का शौक है। फिर देखना मस्जिद किस तरह से भरती हुई नजर आएगी। हर कोई सोचेगा मेहमान खुसूसी हम बने तो मेहमान
खुसूसी बनने के लिए सजदा करना होगा पहले, तकवे का नूर पैदा करना होगा पहले, मस्जिद को आबाद करना होगा पहले, फिर देखना मस्जिद भरती हुई नजर आएगी। ऐ नौजवान दोस्तों, तुम सोचते हो कि मौलवी साहब बोल रहे हैं, इनका काम बोलना है, मगर याद रखना तुमको आने वाले वक्त में बहुत अफसोस होगा जब तेरी शादी होगी, जब तेरे बच्चे होंगे और जब बच्चे बड़े होंगे और वो बच्चा तेरा शराबी होगा, तब तुझे अफसोस होगा। मौलवी जुनैद ने कहा तो था, मगर उस वक्त मुझे बुरा लगा था, काश उनकी बात मान गए होते, आज हमारे बच्चे शराबी नहीं होते, आज हमारे बच्चे जुआरी नहीं होते, आज हमारे बच्चे नाफरमान नहीं होते, आज हमारे बच्चे हमें गाली नहीं देते। हमें सोचना होगा प्यारे मुसलमानों, आपने सोचा कभी कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं? याद रखो, गुनाहगारों को हम इज्जत देते हैं, वो गुनाहगार जो नबी का नाम सुनते कि चेहरा उतर जाता है, हमें तो इज्जत उसे देना चाहिए कि नबी का नाम आता हो आंखें उसकी छलक जाती है, नबी का नाम आता हो दिल उसका धड़कने लगता है, उसी को चीफ गेस्ट बनाओ, उसी को मेहमान खुसूसी बनाओ। मगर होता ये है, दौलत वाले को कुर्सी दी जाती है और जो तकवा वाला है, जो नमाज पढ़ने वाला है, जो रातों में उठ उठ के खुदा को याद करता है, उन्हें चप्पल पे बैठने के लिए जगह मिला करती है। जहाँ सरमायादारों ने अपनी जूतियां खोल के रखा है, उन जूतियों पर बैठने के लिए गरीबों को जगह मिलती है। इस्लाम सबक नहीं सिखाता, इस्लाम ये सबक नहीं पढ़ाता। कभी आपने सोचा? अच्छा, आपकी इजाजत हो तो एक बात और कहूं, किस तरीके से गरीबों को जलील किया जा रहा है आज, किस तरीके से आज गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। गौर करो, रो, खूब रो अपने किरदार पर। समाज में, माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक कमेटी बनती है, आप देखते होंगे जगह ब जगह ये ऐलान होता है, ये जहेज फंड की एक कमेटी है, जहेज फंड की कमेटी है और इसमें पैसे जमा करो। दौलतमंदों के पैसे आते हैं, सरमायादारों के भी पैसे आते हैं, नेताजी साहिबान के भी पैसे आते हैं, और जब साल पूरे हो जाते हैं तो साल पूरा होने के बाद एक महफिल सजती है, गरीब बच्चियों को बुलाया जाता है। ये 15 गरीब बच्चियां हैं, 15 गरीब बच्चों को बुलाया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है। ये 15 गरीब बच्चियां हैं, इन 15 गरीब बच्चियों की हम लोग शादी कराते हैं। आपने जो पैसे दिया ना, उस बच्ची की हम उन्हीं पैसों से इन बच्चियों की शादी कराते हैं, अखराजात हम बर्दाश्त करते हैं, इनके लिए वलीमा का इंतजाम हम किया करते हैं। जो भी खर्च आता है हमारी कमेटी बर्दाश्त करती है। पैसे जमा हो गए हैं, सरमायादारों के पैसे जमा हो गए, शादी की महफिल सज गई है। एक हाल है, एक तरफ कुर्सी लगाई जाती है, कुर्सियों पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, लोग आते हैं, वहाँ नेताजी भी मौजूद हैं, वहीं पर मिनिस्टर भी मौजूद हैं, वहीं पर हमारे मुखिया भी मौजूद हैं, वहीं पर एमएलए एमपी भी मौजूद हैं, वहीं पर हमारे मोहल्ले के सरमायादार भी मौजूद हैं, वहीं दौलतमंद भी मौजूद हैं, कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। दूल्हा कहाँ बैठा हुआ है? दूल्हा जमीन पर एक दरी बिछाई गई है, दूल्हा वहाँ बैठा हुआ है, एक दरी बिछाई गई है जहाँ दुल्हन बैठी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी में 3 ऐसे मौके होते हैं जो खुशी के मौके होते हैं। एक तो जब इंसान पैदा होता है तो मोहल्ले के लोग देखने के लिए उस बच्चे को आते हैं, वो बच्चे के लिए भी खुशी का दिन है, बच्चे के माँ बाप के लिए भी वो खुशी का दिन है। जब पैदा हुआ इंसान तो देखने के लिए आया। दूसरा मौका जब इंसान इस दुनिया से जाता है, कफन जब पहन देता है, तब मोहल्ले और कस्बे के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। और बीच में एक मौका वो होता है जो शादी का मौका होता है, जब कोई दूल्हा बनता है, जब कोई दुल्हन बनती है, तब लोग उसे देखने आते हैं। ये आज का दिन जो इसके लिए है बड़ा अच्छा दिन है। आज तो ये दूल्हा है, शहंशाह की तरह बैठेगा, आज तो ये दुल्हन है, ये शहंशाह के बेटी की तरह बैठेगी। मोहतरम दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, जो खुशी का दिन है एक दूल्हा के लिए, आप जाओ ऐसी महफिल में शरीक हो जाओ। वो दरी पर बैठने वाला गरीब दूल्हा जिसके चेहरे आज तो खिलते हुए नजर आना चाहिए, मगर आज उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, वो गरीब है, मुस्कुरा नहीं रहा है। दूल्हा बना हुआ है, हंस नहीं रहा है, दूल्हा बना रहा है, पेशानी चमक नहीं रही है, आज वो दूल्हा देख रहा है। ये कुर्सी पर बैठने वाले जितने लोग हैं उनसे कहा जा रहा है, ये गरीब बच्चियां हैं देख लीजिए, ये गरीब बच्चे हैं देख लीजिए, इन्हीं की आज शादी होनी है, आज इन्हीं के निकाह की महफिल सजेगी। मेरे दोस्तों, ताल्लुक कराया जा रहा है, ये
ये गरीब है। मैं पूछना चाहता हूँ, गरीब था तो क्या हुआ? वो गरीब था, खाता नहीं था, मगर कोई जानता नहीं था कि ये भूखा है कि खा के सोया है। कोई नहीं जानता था आज की रात ये खाकर सोया है या भूखा सोया हुआ है। लेकिन वो तेरी कमीजी कैसी है, वो जहेज फंड कैसा है, आज पूरी दुनिया के सामने उसे बिठा करके उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया कि ये गरीब है जिसकी शादी हम करा रहे हैं, ये गरीब है जिसकी शादी हम करा रहे हैं। कोई जानता नहीं था कि ये गरीब है, लेकिन तूने आज ऐलान कर दिया ये गरीब है। बोलो प्यारे मुसलमानों, आज गरीब के खुशी का दिन था, वो भी तूने छीन लिया है, वो भी दिल तूने उसका छीन लिया है, आज उसे मजाक बना के रख दिया है। खुदा के रास्ते गरीब बच्चियों का मजाक ना उड़ा हो, खुदा के रास्ते गरीबों का ठट्ठा ना उड़ा हो, गरीबों को रुसवा न करो। मेरे आका ने गरीबों को गले जैसे लगाया है, तुम भी लगाओ ताकि तेरा रसूल राजी हो जाए, ताकि तेरा खुदा। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा। मुहतरम दोस्तों, जी लगा कर मेरी बातों को सुनना। मेरे दोस्तों, बच्चों, आप भी शादी करेंगे, मौका आए, आपके लिए भी वो दिन आएगा। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। गरीब बच्चियों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? गरीब बच्चियों को हाल में बुला करके जहेज फंड की तरफ से निकाह की महफिल क्यों सजाई जाती है? इसलिए कि गरीब बाप डिमांड दे नहीं सकता, गरीब बाप डिमांड पूरा कर नहीं सकता। बेटी बैठी हुई है घर में, रिश्ता आता है मगर पैसे नहीं कि उसके डिमांड पूरे किए जाए। बच्ची बड़ी हो गई है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, गरीब बाप है, गरीब बाप है, कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बेटी जवान घर में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के जहेज के इंतजाम की खातिर घर से निकलता है, चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है, इस इंतजार में रहता है कि कोई आएगा, मुझे मजदूर बनाकर अपने घर ले जाएगा, शाम को वो 100 रुपये मुझे देगा और जब लौटूंगा तो उसी से आटा भी खरीद कर लाना है, कुछ पैसे बचाऊंगा तो बेटी के जहेज का सामान भी मैं बराहम करूंगा। मुहतरम दोस्तों, मगर वो गरीब बूढ़ा बाप है, वो कमजोर बाप है, उस कमजोर को कोई मजदूर बनाकर भी लेकर नहीं जाता। सोचता है कि ये कमजोर है, क्या वो मेहनत करेगा, क्या वो कमाई करेगा? सब उसे नजरअंदाज कर देता है, सब उसे छोड़ देता है। वो गरीब बूढ़ा बाप कहता है, मुझे 10 रुपये कम देना, मगर मुझे आज मजदूर बना के अपने घर ले चलो। आज मुझे 20 रुपये कम देना और मजदूरों को अगर 100 रुपये देते हो तो मुझे 80 रुपये देना, मगर मुझे ले चलो, बड़ी मेहनत से मजदूरी करूंगा, सारे काम अंजाम दूंगा, मगर ले चलो। कोई उसे लेकर नहीं जाता। जब वो बूढ़ा घर से निकला था तो उसे बूढ़ी औरत ने कहा था, आप जा रहे हो ना, आटा खत्म हो गया है, जब लौटना शाम को मजदूरी लेके तो आटा भी लेकर घर आना। आज वो बूढ़ा बाप जब घर पलटता है, आप सोचो उस बूढ़े का जब कदम अपने घर की तरफ उठ रहा होगा, ना आटा लेके जा सकेगा, न गरीब बच्ची के लिए जहेज का सामान फराहम कर सकेगा। उसके कदम उठ रहे होंगे तो कैसे उठ रहे होंगे, कदम उठ नहीं रहा होगा। आज मेरी अहलिया भी मुझसे सवाल करेगी, आटा लाए कि नहीं लाए। मुहतरम दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये माहौल क्यों पैदा हुआ है? इसलिए कि हमने डिमांड करना शुरू कर दिया है, नाजायज हमने खाना शुरू कर दिया है, हराम हमने खाना शुरू कर दिया है, जहेज के नाम पे पैसे लूटना हमने शुरू कर दिया है। नौजवान दोस्तों, अपने बाजू पे सहारा रखो, अपने बाजू पर एतमाद रखो, हिम्मत जुटाओ अपने आप के अंदर। हम शादी करेंगे, नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो किसी गरीब की झोपड़ी को आग नहीं लगाएंगे, बल्कि गरीब की झोपड़ी को आबाद करेंगे, बगैर जहेज के बेटी को दुल्हन बना के हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मुहतरम दोस्तों, अमीरों की कहानी सुनो। हमारे दौर के उमरा, हमारे दौर के सरमायादार, एक बच्ची गुम हो गई है, बच्ची रो रही है, स्टेज के पीछे रो रही है, छोटी बच्ची है, इसकी हो दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी बच्ची नहीं है उसे खड़ा होने की जरूरत नहीं है, जिसकी बच्ची होगी वो खुद जाके ले आएगा। सुनेंगे आप? कुछ बातें करूं मैं, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं जरा।
एक बार बोले सुभान अल्लाह। हाथों को फिदा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। जरा और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, अमीरों की कहानी सुनो, अमीरों की कहानी सुनो। अमीरों का हाल तो ये है, दौलतमंदों का हाल ये है, सरमायादारों का हाल ये है। सरमायादार का बेटा है, सरमायादार का बेटा है, एक दौलतमंद का बेटा है, एक रईस का बेटा है। वो गोल्डन सेब उसका बाप खरीद के लाता है, वो दरवाजे पर सेब लेकर निकलता है, गोल्डन सेब उसके हाथ में है, चाकू से उसे काटता है। एक टुकड़े वो बेटा खाता है, एक टुकड़े और कुत्ते के आगे फेंक देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरमायादार के बेटे तू सेब भी खा रहा है, आधा सेब खुद खाता है, आधा कुत्ते को डाल रहा है। ये तेरी इंसानियत है, ये तेरी अमीरी है, ये तेरी अमीरी है, ये तेरी दौलतमंदी है। तुमने ये भी नहीं सोचा हमारे मोहल्ले में एक कोने में एक गरीब बच्ची भी रहा करती है, एक गरीब बच्चा भी रहा करता है। हम नए नए कपड़े ईद के दिन पहनते हैं, मगर तेरे मोहल्ले में एक बच्चा वो भी है जो छोले बेचता हुआ नजर आता है, गुब्बारे बेचता हुआ नजर आता है। कुत्ते को देना तो तुझे गवारा हुआ, तुझे वो गरीब का बच्चा नजर नहीं आया, वो ठेला पे बेचने वाला बच्चा नजर नहीं आया, वो गुब्बारे बेचने वाला ईद के दिन बच्चा नजर नहीं आया। काश कुत्ते को टुकड़े न डालकर गरीब बच्चे को वो टुकड़ा दे दिया होता तो तेरा रसूल राजी हो गया होता, तेरा खुदा राजी हो गया होता। बता क्या जुल्म करता चला जा रहा है, गरीबों को नजरअंदाज करता है और कुत्ते को सेब के टुकड़े खिला रहा है। जरा सोचना होगा मोहतरम दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी हो गई है। हमने खुदा की रजा की खातिर जिंदगी गुजारने का फैसला ही नहीं किया है। फैसला करना होगा, चंद दिनों की जिंदगी है, ये जिंदगी जी लो खुदा की रजा के लिए, ये जिंदगी जी लो मुस्तफा की रजा के लिए। यहाँ भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी सुरसरुई हासिल होगी। आज हमने गरीबों को तो इस अंदाज से नजरअंदाज किया है, लाचारों को इस अंदाज से नजर किया है। आज ये डिस्पोजल का जमाना आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये डिस्पोजल का जमाना क्यों आ गया है? ये डिस्पोजल का जमाना क्यों आ गया? आज प्लेट आ रही है, आज प्लेट आ रही है खाने के लिए, बहुत बड़ी पार्टी है। और से मेरी बातों को सुनिएगा, आखिर क्यों एक प्लेट में दूसरा नहीं खा सकता, इसे धोना होगा और धोए बगैर खा नहीं सकते, इसलिए डिस्पोजल का इस्तेमाल करो। वो लाओ खाएगा, उठाकर उसे फेंक डालेंगे। मगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अंग्रेजों ने ये तरीका अपनाया है तो उसे अपनाने दो, वो मेरे मुस्तफा का गुलाम तो नहीं है। हम तो अपने आका के गुलाम हैं, हम तो अपने नबी के गुलाम हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शफा रखा है, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शफा रखा है। आज भी खानकाहों में आप जाओ, एक प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट में एक आता है, खा लेता है, खाकर उठकर चला जाता है, प्लेट साफ नहीं किया जा रहा है, प्लेट थोड़ी रखी जाती है, दूसरा आ रहा है उसी में खा रहा है, तीसरा आ रहा है उसी में खा रहा है, चौथा आ रहा है उसी में खा रहा है। प्लेट धोने की जरूरत नहीं है। खानकाह के लोगों ने बता दिया, मुस्तफा ने फरमा दिया कि मोमिनों के जूठे में शफा है। हम तो शफा पाना ही नहीं चाहते। कहते हैं मौलाना साहब, बड़ी दवा की शफा नहीं मिली, इलाज किया शफा नहीं मिली, दवा कराई शफा नहीं मिली, फला हॉस्पिटल में हमने इनको भर्ती किया मगर शफा नहीं मिली। मैं कहता हूँ शफा कैसे मिलेगी? मुस्तफा के फरमान को तोड़ोगे तो शफा कैसे मिलेगी? मुस्तफा की अपनाओ, जूठे प्लेट में खाओ, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शफा। अच्छा, आका ने सिर्फ कहा नहीं, आका ने सिर्फ कहा नहीं, बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाएं तो गौर से सुनिए। मैं बहुत करीब हो रहा हूँ और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक वाकया सुनाता हूँ, सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। सर धुलने को जी चाहे, दिल झूम जाता। मेरे आका ने फरमाया कि मोमिनों के जूठे में शिफा है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकया बहुत पुराना, मगर सुनिए, बात पुरानी है, उसे सुनेंगे। मैं कहता जाऊंगा, आप खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। मौलवी साहब अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, लेकिन एक मकाम ऐसा आएगा जहां आप गुम हो जाएंगे और मौलवी आगे बढ़ जाएंगे। वो मकाम आएगा, हम सुनिए, इजाजत है आपकी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बड़े भूखे थे, कई दिनों से उनके घर चूल्हा जला नहीं था। भूख की शिद्दत इस कदर बर्दाश्त न कर सके,
घर से निकलकर सड़क के किनारे आकर खड़े हुए, चेहरा उतरा हुआ, चेहरा उठाया हुआ। ख्याल ये है कोई राही इधर से गुजरेगा, मैं उसे सलाम करूंगा, मेरे सलाम का वो जवाब देगा, मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी, मेरे चेहरे से निगाह के आसार नजर आएंगे, तो वो कहेगा कि अबू हुरैरा तू लगता है कि भूखा है, चल खाना खा ले। इसी ख्याल से वो खड़े रहे सड़क के किनारे। कोई आएगा मुझे देखेगा तो देखेगा, कहेगा ये लगता है भूखा है, अपने घर ले जाएगा, खिलाएगा। हजरत अबू हुरैरा इंतजार कर रहे हैं, कोई गुजरने वाला गुजरे, मुझे देखे, मुझे देखे। अचानक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। पूरा मजमा बोलिए, तशरीफ ले आए। नजर पड़ी, चेहरा खिल गया हजरत अबू हुरैरा का। अभी अभी करीब आएंगे तो सलाम करूंगा, सलाम का जवाब देंगे, मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी, जब नकाहत के आसार देखेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, मुझे खाना खिलाएंगे। करीब आए, कहा अस्सलामु अलैकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा की तरफ देखा ना, सोचने लगे या अल्लाह, मैं तो सोचा था कि सलाम करूंगा और सलाम का जब जवाब देंगे तो मेरे चेहरे की तरफ देख लेंगे, इन्होंने तो देखा ही नहीं। जल्दी से फिर आवाज दिया, उमर, ए उमर, मुझे कुछ पूछना है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर पलटे, क्या पूछना है अबू हुरैरा? देखा नहीं, हजरत अबू हुरैरा की तरफ देखा नहीं, सर झुकाए हुए हैं। अबू हुरैरा क्या पूछना है, नबी के सहाबी क्या पूछना है? कहा ये आयत की तिलावत की, कहा इसका मफहूम समझा दीजिए। समझना था नहीं, मकसद ये था कि पूछूंगा, वो समझाएंगे तो मेरी तरफ देखेंगे, समझा दीजिए इस आयत का मफहूम क्या है। आयत का मफहूम समझा दिया, फिर रास्ता ले लिया। कहा या अल्लाह, दोबारा बुलाया फिर भी नहीं देखा, अब क्या हुआ? इंतजार कर रहे हैं, अब कोई और आए। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। गौर से बातों को सुनिएगा तो लज्जत महसूस कीजिएगा। करीब आए, कहा अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जो हाल हजरत उमर के साथ था वही हाल यहाँ भी हुआ। जवाब दिया, आगे बढ़ गए। इनसे भी कहा एक आयत का मफहूम समझना है, जरा बता तो दीजिए। पलट के आए, कहा जल्दी से बताइए क्या मफहूम समझना है आयत की तिलावत की। कहा इसका मफहूम समझाइए, मीनिंग समझाइए, माना समझाइए, मफहूम बताइए। बता दिया और हजरत अबू बकर चले। कहा या अल्लाह, इन्होंने भी मेरी तरफ देखा नहीं, अब क्या होगा? अभी वो खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि तीसरा कोई आए। अब आने वाला आ रहा है, कौनैन का वाली आ रहा है, कौनैन का आका आ रहा है, खुदा का महबूब आ रहा है। आकाए कायनात करीब आए। अबू हुरैरा, उमर ने नहीं देखा ना, उमर ने तेरी तरफ नहीं देखा। हे अबू बकर, आपकी तरफ अबू बकर ने भी अबू हुरैरा नहीं देखा। नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं देखा। हे अबू हुरैरा, बहुत भूखे हो ना, चलो मेरे साथ चलो। बहुत भूखे हो, हम ये बताना चाहते हैं कि गरीबों को हक हमने कैसे पामाल किया है, गरीबों का हक हमने कैसे मारा है, हमने कैसे हक तलफी की है। गरीब जिस गिलास में पानी पी ले, हम उस गिलास में पानी नहीं पीते, इससे पहले धो तब पिएंगे। मगर आज सुनो, अबू हुरैरा बहुत भूखे हो ना, चलो मेरे साथ चलो, मैं खिलाता हूँ। सुभान अल्लाह, कासिमे नेमत है कैसे नहीं खिलाएंगे, कासिमे नेमत है कैसे नहीं खिलाएंगे। अबू हुरैरा, चल पूरी दुनिया तो मेरे दर से पल रही है, तू क्यों न पलेगा, मेरे साथ चल। अबू हुरैरा को लेकर अपने घर गए। आवाज दिया, आयशा घर में कुछ है क्या? कहा या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा अंदर ही अंदर उड़ने लगे, या अल्लाह, नबी लेके तो आए मगर घर में कुछ नहीं है। अचानक आवाज दिया फिर, या रसूल अल्लाह, किसी ने हदिया में एक प्याला दूध पेश किया है। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा लाओ न वही लाओ, बहुत भूखे हैं अबू हुरैरा, पिला देता। प्याला पेश किया दूध का। अबू हुरैरा खिल उठे, अब तो भूख खत्म हो जाएगी। आका के यहाँ का
दूध पी लूंगा पेट भर जाएगा, चेहरा खिल उठेगा। आका ने हजरत अबू हुरैरा के हाथ में अभी प्याला दिया ही ना था, तब तक इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा एक काम करो, जाओ मस्जिद नबवी में असहाबे सुफ़ा 70 लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लाओ, वो भी भूखे हैं। एक प्याला दूध है। अबू हुरैरा ने सोचा ये तो मेरे लिए भी नाकाफी है और फिर 70 लोग आएंगे तो क्या होगा, मगर हुक्म है आका का तो कैसे न बुलाएंगे। गए मस्जिद नबवी गए, असहाबे सुफ़ा को बुला लाए, चलिए आका बुला रहे हैं, आप लोग भी बहुत भूखे हैं ना, आका ने दावत दी है, आका ने अपने घर बुलाया है। सब चले आए, सबका चेहरा खिल उठा। हजरत अबू हुरैरा नबी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं आका किसे दे देंगे। आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा लो लो लो, सबको बांटो, सबको पिलाओ। सोचने लगे या अल्लाह ये तो मुझी को पिलाने कह दिया, और पिलाने वाला बाद में पिएगा, बचेगा तब न पिएंगे। पिलाना शुरू कर दिया, आका का हुक्म है, पिलाना शुरू किया। एक ने पी लिया, दो ने पी लिया, 3 ने, 4 ने, 5 ने पी लिया, पीते चले जा रहे हैं। अब बार बार झांक के प्याले में देख भी रहे हैं, अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। पिलाते चले गए, 10 पी लिया, 20 ने पी लिया, 30 ने पी लिया, 40 ने पी लिया, 50 ने पिया, 60 ने, 70 ने पी लिया। सारे सहाबा जब पी चुके, मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा चलो अब तुम पियो, तुम पियो। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा अब तुम पियो। अब आप गौर कीजिएगा, मोहब्बत से जुमले का इस्तेमाल होना चाहिए। अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा ने पीना शुरू किया, पेट भर गया। कहा अबू हुरैरा और पियो, और पीना शुरू किया। कहा अबू हुरैरा और पियो, फिर पीना शुरू किया। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। कहा या रसूल अल्लाह, अब एक कतरे की भी जगह नहीं है, अब कैसे पी सकता हो, अब तो एक कतरे की भी जगह नहीं है। हजरात प्याला अभी तक बदस्तूर मौजूद है, दूध जितना था उतना दूध प्याले में मौजूद है। आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जितने भूखे आप थे उतने की भूखा मैं भी हूँ। आपने पी लिया तो अब मुझे तो मैं भी पी लेता हूँ, अब मुझे तो अब मैं भी पी लेता हूँ। अब कहना क्या है, हम एक मोमिन का जूठा नहीं पीते। मेरे आका कौन के सरदार है, मगर एक आदमी का जूठा पी लेते हैं, एक जूठा पी लेते हैं। नारे तकबीर, नारे हम एक का जूठा नहीं पीते, मगर मेरे आका हैं कि 71 का जूठा पी रहे हैं। बोलो प्यारे मुसलमानों, क्या सबक दिया आका ने? कौनैन का वाली होकर 71 के जूठे पी ले। हम हैं गुनहगार मगर पीते नहीं हैं, हम खताकार हैं मगर जूठे प्लेट में खाते नहीं हैं। मुहतरम दोस्त, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। अगर तुम चाहते हो कामयाबी, अगर तुम चाहते हो कामरानी, तो तुम्हें मुस्तफा के पैगाम पे अमल करना होगा। मस्जिद आबाद करो, फिर देखना, फिर देखना, दौलत की दौड़ नहीं लगेगी, तकवे की दौड़ लगेगी, तहज्जुद गुजारी की दौड़ लगेगी, तकवा शिआरी की दौड़ लगेगी। जिस कदर लोग आज दौलत के लिए भाग रहे हैं, अगर तुमने उन गरीबों को इज्जत दिया, उन गरीबों को मेहमान खुसूसी बनाया जिसके पास सजदे हैं, तो कल लोग फिर दौलत के लिए नहीं भागेंगे, सजदे के लिए भागते नजर आएंगे, तकवा के लिए भागते नजर आएंगे, तहज्जुद गुजारी के लिए दौड़ लगाएंगे। बातें ढेर सारी हैं, बड़े दुखड़े हैं इस सीने में, मगर सुनाऊं तो सुनाऊं कहाँ। उसते दिल तो बहुत है, उसते सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अगर आपकी इजाजत हो, इजाजत हो, मैंने अभी नाते पाक के हवाले से एक बात कही थी। मैं तंज नहीं कर रहा आप पर, मैं आपको समझा रहा हूँ। नात कैसे सुनी जाए, नात कैसे पढ़ी जाए। जो लफ्ज आका की अजमत के लिए बयान की जाए, जो लफ्ज आका की अजमत के लिए अदा हो, जो लफ्ज आका की सीरत के लिए अदा हो, जो लफ्ज आका के
किरदार के लिए अदा किए जाए उसे नात कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसे नात कहते हैं। तो अब नात पढ़ना भी इबादत, नात सुनना भी इबादत। कैसे नात पढ़ी जाएगी ये पूछना होगा आला हज़रत से। कैसे नात सुनी जाएगी पूछना होगा आला हज़रत के चाहने वालों से। वैसे सुनो, इबादत, नात पढ़ना इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। इबादत का तसव्वुर लेकर आप नात सुनिए और इबादत का तसव्वुर लेकर हम नात पढ़ें। अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरे में सुनाऊं, सिर्फ इसलिए कि नाते रसूल रूह की ग़िज़ा है। सुनाऊं, सुनेंगे आप? मगर वो कैफ पैदा करनी होगी। कौन सा? अभी जो दिलवर शाही के लिए आपने करके दिखाया वो आपको नहीं करना है, वो करना है हजरत नदीम रज़ा फैज़ी जब तशरीफ लाएंगे तो फिर आपको इख्तियार है। जो मैं करने जा रहा हूँ, जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसी अंदाज से सुनिए, सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। अगर लग जाए जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलाद नबी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा व रिज़वान ने एक नात लिखी, जेल में थे आप। अल्लाह अकबर। अल्लामा अरशदुल क़ादरी जेल में थे और रबीउन नूर का चांद नजर आया, बेचैन हो गया अल्लामा। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख आएगी, जुलूस निकलेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होगा और मैं जेल में हूँ। काश मैं भी जेल से बाहर रहता तो जुलूस में शिरकत करता। मैं जेल से बाहर अगर होता तो मैं भी जश्न आमद रसूल मनाता। अब किसी ख्याल में, किसी तसव्वुर में अपने नबी को पुकारा है उन्होंने, और जब पुकारा है तो बेल हो गया और रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख से पहले आप जेल से बाहर आ गए। वही नात सुनाता हूँ जो अल्लामा ने सुनाया था अपने आका का। इजाजत है? उसी रंग में मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप सुनिए। पहले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायद आज हजरत नदीम रज़ा फैज़ी भी अल्लामा के इस शेर पर याद व तहसीन से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर। दौर आलम के सरकार आ जाइए, दौर आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दौर आलम के सरकार आ जाइए, दौर आलम के सरकार आ जाइए। शेर मुलाज़ा फरमाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़-ए-रम, हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम, हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर। आप भी बोलिए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आ जाइए। एक शेर आप देखें क्या मोहब्बत जताई है अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत। जलवगर सामने करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। घर के तब्दील एक दिन लिबासे बशर, घर के तब्दील एक दिन लिबासे बशर। दोनों आलम के सरकार
ज्यादा फरमाइश। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल में चलने लगा शौक दीदार का, दिल में चलने लगा शौक दीदार का, बुझ न जाए कहीं ये चिराग सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैंने जो कुछ कहा कहीं पर कोई लफ्ज़िश कोई खता हो गई हो तो मौला की बारगाह में उन खताओं से तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।